السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں لبنہ کوثر، ایجوکیشن والی، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا انٹرویو پوڈ کاسٹ، جس میں آج میری مہمان ہے شہناز پیرنٹنگ والی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی نئے مہمان کے ساتھ اور اس کی سکسیس کے ساتھ، اس کے کامیاب زندگی کے سفر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور خود بھی سیکھتے ہیں، اور آپ کو بھی سیکھنے کے لیے نیا نیا سا میٹیریل جو ہے ہم پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو آج ہم سیکھیں گے، اور شہناز پیرنٹنگ کو میں ان کی بہت شکر گزار ہوں کہ اپنا بہت قیمتی وقت مجھے دیا ہے اور میرے ساتھ میری پوڈ کاسٹ میں آئی ہیں۔ السلام علیکم شہناز، کیسی ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ جی میں بھی ٹھیک ہوں، میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور میری پوڈ کاسٹ میں آئیں۔ اچھا، آپ میرے ناظرین کو تعارف تھوڑا سا کروا دیں تاکہ یہ اچھی طرح سے سمجھ لیں اور سن لیں۔ جی السلام علیکم، میرا نام شہناز بیگم ہے اور میں حیدرآباد انڈیا سے بلانگ کرتی ہوں، اور میں بی اے گریجویٹ ہوں اور میرا 2 سال کا ٹیچنگ ایکسپیرینس ہے، اور ریحان اے آئی انسٹیٹیوٹ ٹیچر ٹریننگ لیول 1 کی اسٹوڈنٹ بھی ہوں، اور تھوڑا سا میرا تجربہ ہے ہوم اسکولنگ پر، جو ابھی میں نے 1 ایئر پہلے اسٹارٹ کیا ہے، اور 2 سال کا ٹیچنگ ایکسپیرینس بھی ہے۔ زبردست، یعنی آپ پھر بیسکلی ٹیچر ہیں۔ جی جی الحمدللہ۔ ٹھیک، تو آپ بتائیں گی کہ مطلب آپ اس لائن میں کیسے آئیں؟ ریحان اسکول یہ اور ایک عام تو بالکل الگ ہے نا؟ جی آپ اس بالکل الگ ہے۔ پلیٹ فارم پہ کیسے آئی ہیں؟ تھوڑا سا اپنا بتا دیں سفر۔ جی ایسا ہے کہ میری سوچ تھوڑی الگ ہے، کیونکہ سبھی لوگوں کے اندر ایک کیوریس جو ہوتا ہے سب سے تھوڑا الگ، یہ ہمارے والدین کی طرف سے بھی ہوگا، کیونکہ ہم جب چھوٹے تھے تو ہمارے والدین بھی ہم پر بہت محنت کرتے تھے، اور سب کی جیسی سوچ ہوتی تھی ان کی ویسی سوچ نہیں تھی۔ الحمدللہ ہم 5 بہنیں اور 2 بھائی ہیں، تو اس وقت میں یہ آپ کو 20 سال پہلے کی بات بتا رہی ہوں، جب لڑکیوں کو جو ہے تیلگو میڈیم ہو گیا یا بیسک جو اپنی لوکل لینگویج ہوتی ہے اسی میں، وہی میڈیم میں ہندی میڈیم ہو گیا، تیلگو یا اردو میڈیم میں بچیوں کو تعلیم دلواتے تھے، اس کے بعد میں شادی کر دیے، پھر وہ بچی اپنے گھر کی ہو گئی، اس طریقے کا تب ایسی سوچ تھی۔ لیکن میرے والدین کی سوچ ایسی نہیں تھی، وہ اس طرح سوچتے تھے کہ اگر ایک لڑکی کو ہم تعلیم دیں گے تو ایک خاندان کو تعلیم دینے کے برابر ہے۔ اسی سوچ کے تحت والدین نے انگلش میڈیم میں ہمارا ایڈمیشن کروایا۔ گھر سے تھوڑا دور تھا، وین میں جانا آنا تھوڑا مشکل تھا، لیکن والد صاحب نے ایک اسٹیپ لیا ہم بہنوں کے لیے سبھی۔ تو اس کے بعد سے پھر ٹیچر بننے کا بھی بہت شوق تھا، کیونکہ آس پاس کے جو بھی بچے ہوتے تھے تو والد صاحب جمع کرتے اور آپس میں بٹھاتے، ان کو کچھ پڑھانے کی کوشش کرتے، اگر انہیں خود بھی کوئی چیز نہیں آتی تو وہ خود بھی سیکھتے، پھر ہمیں سکھاتے، اور جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ آس پاس کے بچوں کو سکھانا، یہ ایک ہمارے لیے اعزاز بھی تھا، اور والد صاحب کی کوشش بھی تھی کہ آپ لوگ سکھائیں، سکھانے سے جو ہے اور مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ تعلیم ہی ایک ایسا زیور ہے جو بانٹنے سے اور زیادہ بڑھتا ہے، اور اس کو نہ کوئی چرایا جا سکتا ہے، نہ کوئی لے کے بھاگ سکتا ہے، اور جتنا ہم اس میں اضافہ کرتے جائیں گے، سکھاتے جائیں گے، تو اور زیادہ اضافہ ہی ہوتا جائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اسی بہت سفر بڑی کو بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ جی جی دیکھیں، جو والدین بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ خاص طور پہ یہ جی جی اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں کہ اپنے ذہن کو اور معاشرے جی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بچیوں کو جی تعلیم دلواتے ہیں، تو آگے ان کے سفر میں بہت کام آتی ہے۔ جی زندگی جی دیکھیں،
ہر بندہ گزارتا ہے، لیکن شعور کے ساتھ زندگی گزارنا بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور یہ سیکھ ہمیشہ والدین ہی دیتے ہیں، کیونکہ جی اس وقت بچے کو خبر نہیں ہوتی ہے کہ اس نے آگے جا کے کیا کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں جی ایک لڑکی پڑھتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک نسل پڑھ لیتی جی ہے۔ بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ تو جی شہناز، آپ مجھے بتائیے کہ آپ کی بی اے کی ڈگری نے آپ کی تدریس میں کتنی مدد کی؟ جی جی ایسا ہوا کہ میرا ایس ایس سی ہونے کے بعد میں نے انٹر کیا۔ انٹر کرنے کے بعد میرے والدین نے سوچا کہ اب گھر پہ تو بچے پڑھاتے ہی ہیں، لیکن ایک ماحول میں ہونے کے بعد میں اس کا تجربہ الگ رہتا، اور مجھے خود بھی ایسا فیل ہوتا تھا کہ میں خود بھی ایک ٹیچر ہوں۔ سو میں نے قریب کے اسکول میں ہی اپلیکیشن دی اور وہاں پر ریئل ایکسپیرینس حاصل کیا، ساتھ ہی ساتھ اوپن یونیورسٹی سے میں نے بی اے کی تعلیم حاصل کی۔ جی اس سے بہت اچھا صحیح، امپیکٹ پڑا۔ زبردست۔ اچھا، آپ کو ہوم میکر اور ٹیچر دونوں مطلب ذمہ داریاں سنبھالنی تھیں، تو آپ کو کیسا لگا کہ آپ دونوں جگہ پرفیکٹ کام کر سکتی ہیں، یا کچھ برڈن زیادہ ہو گیا تھا؟ جی ماشاء اللہ سے یہ اللہ کی قدرت ہی سمجھے، میرا رشتہ بھی خاندان میں ہی ہوا ہے پھوپھو کے بیٹے کے ساتھ، تو ادھر کے لوگوں کی سوچ کافی ملتی جلتی ہے، تو اتنی زیادہ اسٹرگل مجھے نہیں کرنی پڑی۔ بیک اینڈ پہ اگر آپ کو سپورٹ مل جائے تو اتنی مشکل نہیں ہوتی، کیونکہ میرے جو سسر تھے وہ 80 سال کی عمر میں بھی وہ تجوید القرآن، انہیں کچھ غلطیاں تھیں تو وہ گھر پر مولوی صاحب کو بلوا کر اپنی غلطیاں ٹھیک کرتے تھے، تو اس میں ہمیں زیادہ مشکلات نہیں پیش آئی۔ بہت اور بڑی گھر بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیں، جب بڑے تدریس سے جڑے ہوئے ہوں تو ظاہر سی بات ہے کہ چھوٹے اس راہ پہ چلتے ہیں، کیونکہ ہم سیکھتے اپنے بڑوں سے ہی ہیں۔ بہت بڑی بات ہے۔ جی وہ اچھا اس شہناز، وقت آپ مطلب کہ جی جی بولے۔ جی وہ اس وقت انگریزی تعلیم بھی حاصل کر چکے تھے اور ریلوے کے ملازم بھی تھے، اور ان کا بھی یہ کام تھا کہ جب بھی وہ خالی رہتے تھے تو بچوں کو لے کر بیٹھ جاتے تھے پڑھانے۔ جی صحیح۔ اچھا شہناز، آپ جو ہے مطلب ماشاءاللہ اب یہ ریحان اسکول میں آئی ہیں، تو آپ نے کیا تبدیلی دیکھی ہے کہ ایک ہوم اسکول یا ٹیوشن یا مطلب تدریس ہم جو اسکولوں میں نارمل فزیکل پڑھاتے ہیں، اس میں اور اس میں کیا مطلب آپ نے چیز دیکھی جو الگ ہے؟ جی یہ کافی تجربہ ہو گیا مجھے، کیونکہ اپنی اولاد ہونے کے بعد میں اس کا تجربہ ہی اور ہوتا ہے۔ میرے بہن بھائی بھی چھوٹے تھے، ان کے ساتھ ایک تجربہ تھا۔ میں بڑی ہوں، وہ جیسے جیسے بڑے ہوئے، اس وقت تو اتنے زیادہ کوئی کمپٹیشنس نہیں ہوتی تھی، اسکول کو گئے ڈگری لے لیے وغیرہ وغیرہ، نوکری ایسا تھا، لیکن ابھی بہت زیادہ چیلنجز ہے۔ جب ہمارے بچے ہوئے تو میں شروع سے ہی سوچنے لگ گئی تھی کہ کچھ الگ ہونا ضروری ہے، کیونکہ ٹریڈیشنل تعلیم جو ہے ابھی کام نہیں آ رہی، تو میری سرچنگ برابر چلتی رہی۔ پہلے تو سلمان آصفی صدیقی صاحب کو ہم نے سنا، لیکن سر پہ سے چلے جاتی تھی ان کی باتیں، کچھ سمجھ آتی تھی کچھ نہیں آتی تھی۔ پھر ساحل الدین صاحب کو سنا، پھر ایسے کرتے کرتے ایک مرتبہ ریحان سر کی ریل ایسے نظروں سے گزری، جب سے ان کو پھر سننا اور اس پہ عمل کرنا شروع ہو گیا۔ تب ابھی اسکول بھی اسٹارٹ نہیں ہوا تھا، یہ ریحان اسکول، تب سے میں ان کے باتوں کو فالو کرتی ہوں۔ اسٹارٹنگ میں وہ ایک ویڈیو ڈالے تھے، کینوا پوسٹ کس طرح بنانی ہے، کوئی ہادی وغیرہ کوئی لڑکا تھا اس کے ساتھ بنا کر دیے تھے وہ، اس کو دیکھ کر میں پہلے کوشش کری، پھر میری بہن نے کوشش کیا، اس کے بعد بیٹے کے پیچھے لگ گئے ہم لوگ۔ گھر کا بڑا بیٹا ہے، سو ان کے پیچھے برابر ہماری محنت جاری تھی، وہ دیکھتے تھے اور میں بیک اینڈ پہ ان کو سکھاتی تھی کہ بیٹا ایسا کرو ایسا کرو۔ لیکن ریحان اسکول جوائن کرنے کے بعد پتہ چلا کہ بیک اینڈ پہ ہونا ایک الگ بات ہے اور اپنے ہاتھ سے کرنا ایک الگ بات ہے۔ اس پہ کتنی محنت لگتی ہے، صحیح، کتنا وقت لگتا ہے، یہ پتہ چلا۔ صحیح۔ تو ماشاءاللہ آپ
है कि अब आप में पहले से ज़्यादा तब्दीली आ चुकी है और आप एक बहुत बेहतरीन रास्ते पर आ चुकी हैं रेहान स्कूल में आकर। जी, जी। माशाल्लाह ये प्लेटफ़ॉर्म जब मुझे मिला, तो इसके बाद होम स्कूलिंग पर तो मैं सोच रही थी, लेकिन कोई वे नज़र नहीं आ रहा था। हम खुद ही पहले सिर्फ़ एबीसीडी होता था हम जब पढ़ते थे, लेकिन अभी फ़ोनिक्स आ गया, तो पहले हमने फ़ोनिक्स सीखी, फिर बच्चों को सिखाई। क्लासेस भी हम अगर लगाते हैं, लेकिन प्रॉपर वे में बच्चे नहीं सीख पाते। तो पहले जो कुछ भी था हम सीखना और सिखाना, ये अमल इसी तरह जारी रहा। इसके बाद में रेहान स्कूल का जब पता चला, तो अ, एडमिशन का मसला हो गया। या हम दूसरी कंट्री के, या आप दूसरी कंट्री में, तो ये किस तरीके से पॉसिबल है। लिटरली मैं दुआएँ माँगती थी अल्लाह ताला मेरी मदद करे। मैंने एक स्कूल ऐसा देखा है, शायद ये कभी कामयाब हो भी या नहीं, एडमिशन इसमें हो सकता भी है या नहीं, लेकिन मैं तो बराबर उनके लाइव क्लासेस देखती थी, देख के जो कुछ भी मुझे समझ आती थी, वो सिखाने की मैं कोशिश करती थी उन्हें। लेकिन बैकएंड पे जो काम होता था वो समझ नहीं आता था। आहिस्ता-आहिस्ता अल्लाह ताला से दुआ की, कबूल हो गई, सर से बात हुई, एडमिशन हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी टीचर ट्रेनिंग में हुआ। थोड़े मुश्किलात तो ज़रूर आते हैं, कोई भी चीज़ आसानी से मिल जाए तो उसकी कदर भी नहीं होती। बिल्कुल सही। तो शहनाज आपको मतलब होम स्कूलिंग का ख्याल कैसे आया कि मुझे होम स्कूलिंग स्टार्ट करनी है? जी, ये ख़्याल तो मुझे बहुत पहले ही आ गया था, मैं और मेरी बहन को, लेकिन एक प्रॉपर वे नहीं नज़र आ रहा था हमें कि कोई अकेडमी हो या कोई हमें गाइड कर सके। जितना एक 4th-5th क्लास तक तो हम लोग गाइड कर सकते हैं, उसके आगे फिर हमें कोई ना कोई हायर ट्यूशन हायर करना पड़ता है। कोई अच्छी जो ज़्यादा तालीम याफ़्ता हो, उन्हें लगाना पड़ता है। लेकिन जितनी हमसे हो सकती थी, इसमें मैं रायद अफ़ज़ल सर का नाम भी लेना चाहूँगी। उन वो भी एजुकेशनिस्ट है। उनके भी वीडियोज़ हमने सर्च की और वो ज़ेरॉक्स करवा के उस तरीके से पढ़ाना स्टार्ट किया। आसानी हो गई इसमें, वो वीडियोज़ थे और हम लोग उसे ज़ेरॉक्स करा के वो बुक्स बनवा के बच्चों के सामने रखते थे और पढ़ाते थे। होम स्कूलिंग एक टफ़ है, इतना आसान नहीं है, बोलना बहुत आसान है, लेकिन ये टफ़ है। 2 बच्चों से तो मुझे सोचने में ही वक़्त निकल गया कि होम स्कूलिंग कराएँ, नहीं कराएँ, कैसा होगा? तो अभी लास्ट ईयर मैंने बड़ी बच्ची के लिए भी स्टेप ले लिया। अभी बड़े बच्चे के लिए भी मैंने ये साल स्टेप लिया कि टोटली मैं डिस्कनेक्ट कर रही हूँ स्कूल से। अभी वो लेवल 1 में जाएगा। सही। ठीक है, तो आपने जो अपने नाम के साथ पेरेंटिंग वाली लगाया है, तो इसका क्या मतलब है? एक होता है प्रिंटिंग वाली, एक होता है जी, पेरेंटिंग वाली। जी, जी। आप थोड़ी वज़ाहत कर दें। प्रिंटिंग वाली और पेरेंटिंग वाली में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पेरेंटिंग तो हर औरत जैसे ही माँ बनती है, उसके साथ लगी हुई होती है, थोड़ा-सा इंसान पॉलिश कर ले, थोड़ा और ज़रा ऑब्ज़र्वेशन कर ले तो पेरेंटिंग वाली हो गई। मैंने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और बच्चे किस वक़्त कैसा सोचते हैं, वो जल्दी मुझे समझ आ जाती है और उनके साथ वक़्त मैं गुज़ारती हूँ। ज़्यादा स्ट्रेस उन्हें भी नहीं होता, मुझे भी नहीं होता। थोड़ा-सा तजुर्बा मुझे इस फ़ील्ड में है, इसीलिए मैंने पेरेंटिंग वाली लगाया और पेरेंट्स बच्चों के साथ होना बहुत ज़रूरी है। ये मेरा मानना है, क्योंकि पेरेंट्स हमारे साथ भी थे, तो हम भी पेरेंट्स बच्चों को इसी तरह से तरबियत दे रहे हैं। ज़बरदस्त। आजकल वालिदैन को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की रहनुमाई की ज़रूरत है? आप भी एज़ ए पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंटिंग वाली है ना, एज़ ए पेरेंट्स हैं और आप क्या समझती हैं कि वालिदैन को किस किस्म की रहनुमाई की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? जी, आजकल के जो पेरेंट्स हैं, वो झट से बात मान लेते हैं बच्चों की, ये एक मुझे थोड़ा सही नहीं लगता कि कोई भी चीज़ हम माँगने से जब भी ऑफ़र कर देंगे, तो उनके अंदर पेशेंस कैसा आएगा और सामने वाले की तकलीफ़
नहीं समझ सकते, और ना मिलने पर पे तो वो बहुत हाइपर हो जाते हैं। तो इसीलिए आपके पास वो चीज़ मौजूद भी हो तो उसको थोड़ा वक़्त देकर दें। सडन पूछते ही अगर दे दें तो बच्चे फिर बहुत हाइपर हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा लाड़-प्यार मैंने देखा अभी जो जनरेशन है, इतना ज़्यादा लाड़-प्यार भी बच्चों के साथ मुनासिब नहीं मैं समझती हूँ। क्योंकि उनके बीच में ये जो दोस्ताना रवैया जो कहते हैं बच्चे और पेरेंट्स में, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक जब ज़रूरत हो जब डाँट भी लगाएँ और वक़्त पे उन्हें गुस्सा भी करें और उनके अच्छे और बुरे की तमीज़ सिखाएँ, ये बहुत ज़रूरी है। मोहब्बत एक अलग है, तरबियत अलग है। दोस्ताना रवैया रखें आप, लेकिन इस तरीके से नहीं कि बिल्कुल ही दोस्त बन जाएँ उनके साथ। सही। यानी ये वो वही बात हो गई ना जो हमारे बड़े कहते हैं कि खिलाओ सोने का निवाला और देखो शेर की आँख से। ऐसा ही है ना? ताकि बच्चे पर रोब भी कायम रहे और बच्चा जी, जी। इज़्ज़त भी करे और बात को समझे और माने। ये जी, होना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी ये बात मुहा की आप। ये मुहावरा बिल्कुल फिट बैठा है इस बात पर। जी, क्योंकि हमारे वालिदैन भी यही करते थे और मैंने भी अपने बच्चों की तरबियत ऐसे ही की है, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे आज स्टेबल हैं, अपने-अपने जी, कामों में माशाल्लाह कामयाबी से कमा रहे हैं अपना घर बा इसी तरह अब मेरे आगे जो मेरे पोते हैं, पोतियाँ हैं, उनको भी मैं ऐसे ही लेके चलती हूँ। और जी, सब डरते माशाल्लाह, भी हैं माशा मुझसे और मोहब्बत भी बहुत करते हैं मुझसे। जी, जी, ये तो होता है। जी। अच्छा, हर तदरीस और अपनी ज़ाती ज़िंदगी कैसे तवाज़ुन कायम रखती हैं? दोनों का वक़्त अलग-अलग है मैम। अगर हम दोनों को एक साथ लेकर चलते हैं और बैक सपोर्ट हो तो इतनी मुश्किल नहीं होती। लेकिन जब मुझे फ़ोकस करने का टाइम होता है तो मैं बिल्कुल अकेली, कोई शोर वग़ैरह ना हो या रात का वक़्त हो या बिल्कुल सुबह का वक़्त, सहरी वाला वक़्त हो, उस वक़्त मैं फ़ोकस करके वो काम करती हूँ। इस शोर वग़ैरह में मुझे कुछ समझ नहीं आती। जो मेरे पर्सनल काम होते हैं वो मैं अलग से अपना वक़्त रख कर उसमें करती हूँ और शेड्यूल भी बना लेती हूँ इसी में। या बच्चे भी मेरे साथ होते हैं, वो भी मुझे वेजिटेबल्स कट करके देना, घर के थोड़े काम-काज में भी हाथ बटा देते हैं, क्योंकि उनके साथ-साथ बातें करते हुए वो भी काम भी सीख जाते हैं और अपनी मदद भी हो जाती है। तो इसलिए ज़्यादा मुश्किल नहीं लगती। बिल्कुल सही, ज़बरदस्त बात है कि देखिए हर वर्किंग वूमेन जो होती है वो अकेली करते-करते ना बोझ उठाते-उठाते थक जाती है। लेकिन जब अपने बच्चों का, शौहर का, घरवालों का साथ हो, एहसास हो ना, तो फिर वो थकावट भी ताकत बन जाती है। ये बहुत बड़ी बात है, बच्चों का जी। साथ और बच्चे साथ दें, माँ को समझें, तो ये बहुत अच्छी बात है। इस तरह उनकी तरबियत भी होती है और वो खुद भी सीखते चले जाते हैं। जी। तो आपके घर में जब मेहमान आते हैं, तो मेहमान मतलब आते हैं तो अफ़रा-तफ़री पड़ती है या सब मिलके उसको हैंडल करते हैं? मेहमान भी जानते होंगे आपकी एक्टिविटीज़ को ताबन करते हैं? जी, जी मिस, मैं कोई वर्किंग वूमेन नहीं हूँ। हाँ, मैं घर पर ही होती हूँ, लेकिन बच्चों के साथ मुझे अलग से वक़्त, क्योंकि एक आम माँ की तरह मैं नहीं हूँ। सुबह स्कूल भेज दिया, शाम में बैग देख लिया, फिर खाना दे दिए, इस तरीके की माँ तो मैं नहीं हूँ। तो थोड़ा मेरा वक़्त ज़्यादा ही लगता है बच्चों के साथ। एक्टिविटीज़ में तकरीबन मेरे बहन-भाई भी जो है एजुकेटेड है और जॉइंट फैमिली सिस्टम है, लेकिन सेपरेट फैमिलीज़ रहती हैं हम लोग, पोर्शन्स अलग-अलग है। गैदरिंग्स होती हैं तो सब इकट्ठे हो जाते हैं, दावत वगैरह हो जाती है, फिर जिसके पोर्शन में उन्हें चले जाते हैं, जिसकी ज़िम्मेदारी उसको। तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, सब मिल-जुल कर कर लेते हैं। मेरे बहन, हाँ, बड़ी फैमिली होने की वजह से अक्सर गैदरिंग्स होते ही रहती हैं, हर हफ्ते में 1-2 मर्तबा तो माशाअल्लाह से गैदरिंग हो ही जाती है। करीब-करीब भी घर है और जॉइंट फैमिलीज़ भी है, तो इसके लिए गैदरिंग्स का मसला नहीं है, सब मिलकर कर लेते हैं। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब थोड़ा-सा आपकी शख्सियत पर बात करते हैं। तो आपको कौन-सा रंग सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? मुझे शुरू से ही व्हाइट कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। वो बहुत मुझे खूबसूरत लगता है वो रंग।
पता नहीं क्यों मुझे वो सफ़ेद रंग बहुत खूबसूरत लगता। सफेद रंग तो अमन की निशानी है ना। जी, जी, जी। जबरदस्त। बहुत कपड़े भी ऐसे बनवाती थी शादी के शुरू में, तो मुझे पहनने नहीं दिया गया, वैसे ड्रेसेस ऐसे ही रखे रह गए, नहीं अभी आप नहीं पहनना या ऐसे कपड़े, लेकिन पता नहीं वो रंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सही। तो मतलब अदर दूसरे रंग आप ज्यादा पसंद नहीं करती हैं? जैसा अभी औरतों को पसंद होता है, पिंक कलर हो गया और रेड हो गया, मरून हो गया, लेकिन ज़्यादा मैं व्हाइट में लाइट कलर्स ज़्यादा पसंद करती हूँ। येलो हो गया, डिफरेंट शेड्स में। सही। तो खाने में आपको सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद है, खाने में और बनाने में? खाने में तो मुझे दाल-चावल ही बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके साथ कुछ भी हो जाए, कबाब हो जाए, शामी कबाब या तला हुआ गोश्त, ये पसंद है। बनाने में बिरयानी मुझे बहुत आसान लगती है, 10 चीज़ें बनाने से तो बेहतर है, 1 बिरयानी बना दो और दही की चटनी, सब गैदरिंग मस्त। जबरदस्त। अ, आसानी भी है, सब पेट भर कर भी खा लेते हैं। जबरदस्त। इसका मतलब है कि आपके घर वाले बिरयानी को खूब एंजॉय करते हैं। सही। चले जी, जी, अब जी। ये बताइए कि मतलब ड्रिंक्स में आप क्या पसंद करती हैं? चाय, अ, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक? वैसे तो हम लोग ड्रिंक्स नहीं लेते, सुलेमानी चाय लेते हैं, जो कि डिकॉशन ब्लैक टी जो कहते हैं वो लेते हैं। हम लोग को आदत नहीं है चाय वगैरह की। और ये जो कोलास वगैरह है बहुत रेयर, चिकन भी बहुत रेयर आता है हमारे पास। अच्छा, आप मतलब कि जल्दी उठती हैं या या मतलब आदत है रात को देर तक जागना है, जल्दी सो जाती हैं? रात में तो अक्सर मुझे लेट ही होता है, वक़्त के हिसाब से। सुबह में मैं नमाज़ पढ़ कर अगर वक़्त हो तो सो जाती हूँ, या नहीं तो फिर अपने कामों में मशगूल होकर दोपहर में फिर स्लीप कंप्लीट कर लेती हूँ। सही। तो आप मतलब कि चावल ज़्यादा खाना पसंद करती हैं या रोटी? रोटी, बिना रोटी के नहीं रह सब। सकते हम लोग। ओके, दाल ज़्यादा पसंद है या गोश्त? दाल तो रेगुलर बनना ही है मिस, घर पे दाल अगर नहीं बनी तो फिर बच्चे चले जाएँगे आस-पास, ताई, चाची, अम्मी आज दाल नहीं बनाए। अगर उनके पास भी नहीं बनी तो मेरे पास आ जाते रेगुलर तकरीबन। अच्छा, बड़ी बात है। और हमारे घरों में दाल देखकर मुँह बना लेते हैं वो लोग कि नहीं, हमने हुँ, दाल नहीं खानी, हमें दूसरा चाहिए। दाल या दाल-चा, सही। ये कंपल्सरी दाल, दाल-चा या खड़ी दाल, ये एक सुबह नहीं तो शाम, शाम नहीं तो दोपहर कंपल्सरी। ज़बरदस्त, बेहतरीन। तो मिस आपको जो है मतलब साड़ी पहनना पसंद है या सलवार कमीज? मैं शलवार कमीज़ ही ज़्यादा पहनती हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा वक़्त लग जाता है साड़ी, लेकिन औरत जो साड़ी पहनती है उसकी खूबसूरती ही अलग होती है। हम इंडियंस में बड़े ओकेशन्स पे साड़ी ही पहनते हैं, अगर ड्रेस वग़ैरह पहन ले तो सब हमें ऐसे घूर-घूर के हाँ, अच्छा। हाँ, तो हम साड़ी तो जबरदस्त। ज़्यादा ट्रेडिशनल बहुत करीब के लोग हो गए तो हम साड़ी ही पहन के जाते हैं। और उसकी सही। खूबसूरती भी बहुत अच्छी होती है, पहनने के बाद बहुत खूबसूरत नज़र आती है औरत। अच्छा, यानी बेसिकली आपको साड़ी पसंद है? जी, जी, इसमें लेकिन टाइम गेनिंग है इसीलिए उसको छोटे फंक्शंस में अवॉइड कर देते हैं। ओके, ठीक है। आपको ऑनलाइन तालीम पसंद है या फिजिकल? फिज़िकल तालीम जो है मिस वो बच्चों को तरबियत सिखाती है, उस्ताद का अदब करना सिखाती है। बेहतर तो ये है कि फिज़िकल हो, लेकिन अब के हालात जो अभी जो मौक़े हैं, उसमें अब ऑनलाइन ही बेहतर है। उसी में इसीलिए तो कहा गया है कि पेरेंट्स अगर तवज्जो दें तो फिर बच्चे उस्ताद की भी इज़्ज़त करते हैं, पेरेंट्स की भी इज़्ज़त करते हैं। अ, जो फिज़िकल में होता था वो अब पेरेंट्स ने ज़िम्मेदारी लेनी है। चलें जी, बहुत बड़ी बात है। और अपने बारे में कुछ
पता आपकी शख्सियत कैसी है? कुछ अपने बारे में कहिए। आप जी, क्या समझती मैं ऐसी हूँ? मैं थोड़ी गुस्सैल भी हूँ और थोड़ी बहुत जल्दी माफ़ कर देने वाली। मुझे याद नहीं रहता कि उसने क्या कहा, इसने क्या कहा। मैं खुद भी जो कहती हूँ मुझे याद नहीं रहता। फिर मिल जाते हैं हम लोग। अस इस तरीके से पॉज़िटिविटी बहुत है। नेगेटिव सामने वाला बंदा हो भी तो मुझे परवाह नहीं, वो होता रहे नेगेटिव। ज़बरदस्त। वो पता है क्या आपकी वॉइस से लग भी रहा है कि आप पॉज़िटिव थिंकिंग की मालिक हैं, क्योंकि हमारी जो आवाज़ है ना वो हमारी शख्सियत की अक्कासी करती है। तो शहनाज़ बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतनी प्यारी खूबसूरत बातें की और कीमती वक़्त हमारे साथ अपना शेयर किया। और हमारे जी, तमाम सुनने वालों का भी शुक्रिया कि उन्होंने भी हमें वक़्त दिया। जिन्होंने जी, अभी दिया उनका भी शुक्रिया और जो हमें बाद में सुनेंगे उनका भी शुक्रिया। लेकिन आपसे एक शिकायत मुझे ज़रूर रहती है कि आप लाइक, शेयर और कमेंट्स बिल्कुल नहीं देते। प्लीज़ हम आपके कमेंट्स के मुंतज़िर होते हैं और इससे हमारी हौसला अफ़ज़ाई होती है। आपका एक लाइक आपको तो कुछ नहीं जाता, हमारे लिए कीमती है और शेयर करना तो बहुत ही ज़रूरी है। प्लीज़ ये लाज़मी काम किया करें क्योंकि हम आपके लिए यहाँ आते हैं। जी, उम्मीद करती आपका हूँ भी। कि आपको आज का सेशन पसंद होगा और आपने इससे लाज़मी मेरी मेहमान शहनाज़ पेरेंटिंग वाली की बातों से बहुत कुछ सीखा होगा। तो अपना ख़्याल रखिए, हमारे जुड़े रहिए, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह इसी प्लेटफ़ॉर्म पर। इजाज़त चाहती हूँ मुझे और मेरी मेहमान शहनाज़ पेरेंटिंग वाली को। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि हुँ। व बरकातहू। जी, बहुत शुक्रिया आपका भी। अस्सलाम वालेकुम।